Good evening all. Am I audible? Can anyone respond in the chat box? Am I audible or not? Am I audible? Am I audible? Is my voice audible? Hello. Yes, thank you very much. And is the screen is visible? The PPT screen is visible. Screen is visible. Yes. Thank you very much. So let us start with the discussion of mind ventilation. Right. So hello everyone. Myself Devasis, and I will going to teach you mind ventilation. Okay. So let's start discussing mind ventilation, right? Myself Devashish Mishra, and why ventilation is, of course, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं to score marks in GATE exam, right? That's our prime motive. Okay, but recently, what happened? The question papers that were asked were kind of tricky, right? Direct formula based questions बहुत कम आ रहे हैं आजकल, right? So that's why what we need to know circle volume of little bit. Okay, not visible screen. Okay, I think it is visible because most of you guys have responded. Visible. दो तीन क्वेश्चन आते हैं वेंटिलेशन से, राइट? तो what is my course plan? How we will going to cover this subject, right? Since many of you have covered this fluid flow in your 11th class, most probably, or during the preparation for your entrance exams like IIT, JEE, right? At that time, you must have prepared for fluid flow, but you must have forgot some of the basic concepts. तो हम उसको थोड़ा पहले डिस्कस करेंगे, राइट? Then also we will discuss about fundamental and thermodynamics. After discussing these two, you will get to know, right? You would feel that how easy the ventilation subject is. उसका जो न्यूमेरिकल्स है फॉर माइंड, इट इज नॉट अ मैकेनिकल सब्जेक्ट, राइट? हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना कि अपन को माइनिंग माइंड वेंटिलेशन के लिए जरूरत है. ओके, तो वी विल फर्स्ट डिस्कस दिस टू. Few classes I will take to discuss these things. Today also we will going to discuss this fundamental of fluid flow. Okay, then fundamental of heat and thermodynamics, right? एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स, अभी यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाएगा. माइनिंग की जो चीजें हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स, mine climate, natural ventilation, mechanical ventilation, different types of ventilation system used in mines, like your U system of ventilation, W system of ventilation, booster fan, okay, ventilation stoppings, ventilation doors, those things will be covered in this section. Okay, lastly, I I'm putting this mine air and their detection in at during our ending of this course because it is mostly a factual based. Okay, यहाँ पे बस आपका facts रहेगा, some theories रहेंगी, right? One two types of numericals like black dam calculation, fire dam calculation, those were also covered in your rescue and hazard. Okay, so this is a total course plan. Okay, any doubt regarding this, you may put in the chat box. Any doubt regarding this? नेटवर्क इशू सर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, आवाज कर रहा है. विजिबल यस सर, हिंदी में बोलिए. ओके, हिंदी हिंदी में ही बोलेंगे सर. ओके सर, आवाज कट रहा है. इज इट? तो नाउ आई थिंक
मेरा आवाज तो आ रहा है सबको? दिस ऑडिबल है मेरा आवाज? माय वॉइस इज ऑडिबल? वॉइस ब्रेक हो रहा है? ओके, होल्ड ऑन अ सेकंड ना गाइस, आई विल जस्ट रिकनेक्ट. ऑडियो ब्रेक. Now is it fine? Now is it fine? Yes. Yeah, I will start. Just give me 1 second. Okay, so this is the whole contents. तो अभी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स. ओके, तो व्हाट इज अ प्रेशर? राइट. ऑफन प्रेशर कैसे हम मेजर करते हैं? राइट. हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं माइन वेंटिलेशन. इन अ माइन वेंटिलेशन, व्हाट इज our key issue is air. And what is a air? Air is a fluid. What is a fluid? फ्लूइड क्या होता है? जो कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है, नट एक जगह से दूसरी जगह. कोई अगर पूछेगा तो ऐसे मत बोलना, बोलना कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लूइड फ्लो करता है. ओके. इस चीज के लिए एक बार एक बंदा बहुत डांट खाया था एक वेंटिलेशन ऑफिसर से. ठीक है, प्लीज रिमेम्बर दिस. हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमेशा एयर फ्लो करता है. राइट. तो अभी वहां पे प्रेशर आ रहा है, तो व्हाट इज अ प्रेशर? सी, we will see absolute pressure, gauge pressure, all those things. Okay, so basically a gauge pressure, what, how it is denoted? A gauge pressure कैसे डिनोट करते हैं कि it is the difference between two level. right. लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये सब चीजें आप नोट कीजिए. ठीक है, ये सब बेसिक्स हैं. ओके, यहाँ पे पानी है. ठीक है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहा हूँ बी. तो नाउ आई वांट टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. लेट सपोज यहाँ पे आपका प्रेशर है पी ए, यहाँ पे प्रेशर है पी बी. राइट. तो यहाँ पे मैं प्रेशर कैसे मेजर करूंगा? लेट यहाँ पे मैं एक फ्लूइड लिया हूँ, लिक्विड लिया हूँ, वाटर लिया हूँ, कुछ भी लिया हूँ, उसका डेंसिटी है रो. ठीक है, डेंसिटी इज रो. तो अभी कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, कहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली एट पॉइंट बी, क्योंकि वो नीचे है. ठीक है, तो प्रेशर बी और प्रेशर ए का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा पी जो है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये कितना रहेगा इसका वैल्यू? रो, जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, इनटू इसका हाइट. कितना लिक्विड कॉलम हम लिए हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज योर लिक्विड कॉलम. सी इन दिस फिगर, मैं यहाँ पे एक व्हाट इज अ बारोमेट्रिक प्रेशर के बारे में दिया हूँ. व्हाट इज दिस मीन्स? ये आपका जनरल नॉलेज है. राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ है? रो इंटू जी इंटू एच. तो यहाँ पे रो क्या है? बेसिकली डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का डेंसिटी है. बेसिक्स है ये सब चीजें. ये क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अर्थ का.
and what is H? H is basically your liquid column. आपको क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? कंटेंट बताया, उसमें पूरा गेट का वेंटिलेशन के क्वेश्चन टॉपिक्स आएंगे। इतने में सिलेबस कंप्लीट है। अरे अभी तो स्टार्ट किए हैं, तो थोड़ा सा यू गाइस शुड हैव सम पेशेंस, राइट? ठीक है, तो यही है यहाँ पे। तो हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या आता है? पीबी माइनस पीए। क्यों? नीचे ज्यादा प्रेशर आ रहा है क्योंकि, तो अभी इसको, इस टर्म को हम और एक फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा पी इज इक्वल टू पीबी माइनस पीए विच इज इक्वल टू रो जी एच। इसको हम लिख सकते हैं। तो प्रेशर एट बी, प्रेशर जो प्रेशर है एट एच डेप्थ फ्रॉम ए लेवल, उसमें कितना होगा? पीए प्लस रो जी एच, राइट? दिस इज द प्रेशर। अभी क्या होता है, अपना जो एटमोस्फियर है, दिस इज योर अर्थ, दिस इज योर अर्थ, राइट? अभी अर्थ के चारों तरफ क्या है यहाँ पे? दिस इज द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में क्या भरा पड़ा है? वहां पे एयर भरा पड़ा है, राइट? अभी ये एयर भी क्या है? एज ए फ्लूइड। तो एयर क्या करता है अपना, आप लोग कभी ये मूवीज वगैरह देखे हैं जहाँ पे क्या होता है, स्पेस में जाते ही आपका क्या होता है, जो भी लूज होता है सब ऐसे उड़, वहां पे क्या होता है, ऐसे फ्लोट करने लगता है, सब एक जगह पे नहीं रहता है। हम बोलते हैं कि इसीलिए हमको स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, ताकि जो अपना स्किन का जो सेल्स हैं वो ऐसे निकल ना जाए, पूरा बर्स्ट ना हो जाए, फट जाता है ना पूरा, जैसे एक मीट का टुकड़ा होता है वो फट जाता है, वैसा नहीं ना हो। क्यों करते हैं? बिकॉज अपना जो स्किन है ऐसा है, बिकॉज एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग अपॉन आवर स्किन, आवर बॉडी, राइट? तो व्हाट इज एन एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो हम थोड़ा देखते हैं। अगर अपना इतना हाइट का लिक्विड कॉलम है, राइट, एच हाइट का लिक्विड कॉलम है, फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमोस्फियर, इतना हाइट का अगर लिक्विड कॉलम है एच हाइट का, वहां पे अगर हम क्या करें, वहां पे barometric pressure or atmospheric pressure of air at any point is the weight of air column of the atmospheric air per unit area. Okay, weight of air column मतलब एक, ये कितना 1 मीटर क्यूब का अपन एक एरिया लिए हैं, और h हाइट का यहाँ पे उसका हाइट लिए हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर इंटू जो आपका लिक्विड कॉलम का हाइट है h, राइट? इसको मैं डायरेक्टली a लिख देता हूं यहाँ पे। a इंटू एच आपका हो गया वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम इंटू क्या करेंगे? डेंसिटी, राइट? तो इतना, इतना डेंसिटी, और ये कितना वेट, इसका कितना होगा? इसका वेट ये हो गया आपका मास। टोटल मास कितना है? मास ऑफ एयर कॉलम इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, इतना मास हो गया। तो मास इंटू जी इज इक्वल टू उसका वेट देता है न्यूटन में, राइट? इसको डिवाइड बाय कर देंगे, ये आपका क्या हो गया? वेट फोर्स। कितना वेट फोर्स है, राइट? इसको हम डिवाइड कर देंगे फोर्स अपॉन एरिया। हमको पता है ये प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर। इसको डिवाइड कर देंगे एरिया से, ये कट गया तो क्या आ जाएगा? रो जी एच। आपका इससे भी आ रहा है, बट यहाँ पे रो अपना क्या करेंगे? एयर का डेंसिटी यूज करेंगे। जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है फॉर अर्थ, एंड एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आता है यहाँ पे आपका, ये जो देता है, अगर एरिया को अपन 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं, एरिया अभी यहाँ पे इफेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि वो कट जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका क्या देता है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये कन्वर्जन में काम आएगा। कैसे कन्वर्जन में काम आएगा आपका? कि क्वेश्चन में अगर दिया होगा कोई भी क्वेश्चन, लेट सपोज आपका, अभी थोड़ा आपको इंटरेस्ट जगाते हैं, आपका डेंसिटी पूछा गया, जैसे कि आपका कहाँ पे? नेचुरल वेंटिलेशन में, वहां पे बी इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 287.1 इंटू टी आता है। वहां पे बी इज द प्रेशर, बारोमेट्रिक प्रेशर, या फिर सिंपल प्रेशर इन केपीए लिखता है वहां पे। तो केपीए, और क्वेश्चन में दिया होगा कि उसका प्रेशर कितना है, दिया होगा प्रेशर इन द
प्रेशर रीडिंग उसका दिया होगा लेट्स सपोज 720 mmHg दिया होगा। अभी यहाँ से यहाँ आपको कन्वर्ट करना रहेगा mmHg टू kPa। उस टाइम आप क्या करेंगे, अगर ये कन्वर्जन वगैरह आपको याद होगा या फिर आप कभी देखे होंगे इसको, देन यू कैन इजीली डू दिस। क्लियर? तो अभी पता चला कि कैसे अपना एयर कैसे प्रेशर डालता है, बारोमेट्रिक प्रेशर किसे कहते हैं, अपना एयर कॉलम कैसे प्रेशर डालता है। इट इज अ जनरल बेसिक नॉलेज, ओके, जनरल नॉलेज। तो अभी आते हैं, आपका यहां से क्लियर हो गया व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीएटीएम जिसको लिख रहे हैं, राइट। तो ये जितना भी अपना ऑब्जेक्ट्स है ऑन आवर अर्थ सरफेस, सभी के ऊपर ये क्या करता है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालता है। हमेशा प्रेशर को ऐसे मल्टीपल एरोस में डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद एन एरिया, एरिया के साथ ही एसोसिएट होता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने डाला। अभी हमको क्या चाहिए, प्रेशर एट ए चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, ये फॉलो कीजिए आप लोग। प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एटमोस्फियर प्लस, यहाँ पे अगर मैं लिक्विड लिया हूं, लिक्विड रो, तो रो इंटू जी, जी तो आपका कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड, इंटू दिस हाइट, लिक्विड कॉलम का हाइट। ओके, तो अभी यहाँ पे व्हाट इज ए गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर इज बेसिकली, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, पीए इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं हम आगे वो सब देखेंगे, मैनोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर क्या होता है, एनेरोड बैरोमीटर। अभी ये रिसेंट वाला जो आप देखे होंगे, पाइप्स वगैरह में ऐसे फिट कर देते हैं, वहां पे आपका रीडिंग दे देता है, ये क्या होता है, विल टॉक अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट प्रेशर है पी ए माइनस पी एटीएम, एटीएम इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, रो जी एच। तो इसीलिए, तो रो जी एच क्या दे रहा है, आपका गॉज प्रेशर दे रहा है। तो गॉज प्रेशर किसे बोल रहे हैं, ऑफन द प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इनफरेंस टू द लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर एज डेटम, इन विच केस इट इज कॉल्ड गॉज प्रेशर। मतलब ये प्रेशर माइनस द लोकल एटमोस्फेरिक प्रेशर जितना हो रहा है, इसलिए हम हमेशा इसको डिनोट करते हैं, रो जी एच को गॉज प्रेशर में डिनोट करते हैं। क्लियर द टर्मिनोलॉजी, गॉज प्रेशर क्या है। सर स्लोली समझाइए प्लीज, इट्स वेरी फास्ट गोइंग। भाई पहले ये सर क्या बोल रहे हैं वो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। ओके, लिक्विड कॉलम क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, सी देयर इज नथिंग लाइक ए एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, ये हम लोगों ने ही बनाया है, देयर इज नथिंग लाइक अ एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट प्रेशर, हम लोगों ने इसे एक टर्मिनोलॉजी दिया है कि वहां पे इतना प्रेशर होगा। प्रेशर को हमेशा हम कैसे माप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, always we measure the pressure by measuring the difference, always। okay, we never measure the pressure। see, हम कोई भी वेट लेते हैं, अगर आप पहले के सिस्टम में अगर जाओगे, आपका जो पहला सिस्टम है, पहले जैसे आप मेजर करते थे ऐसे, जब भी आप मार्केट में जाएंगे तो ये वेट बैलेंस रहता था वहां पे। तो हम क्या करते थे, एक तरह यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वेट लाते थे। वो स्टैंडर्ड वेट कौन बनाया है, हमने ही बनाया ना। एक तरफ एक स्टैंडर्ड वेट रखते थे और दूसरी तरफ कुछ आइटम रख के इसका वेट मेजर करते थे, बैलेंस करते थे यहाँ पे, राइट। सो लाइक दैट देयर इज नथिंग लाइक एन एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, क्लियर। तो ये बस एक टर्मिनोलॉजी है एब्सोल्यूट प्रेशर, उतना डिटेल में जितना चाहिए मैं आपको बता दिया हूँ। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप ना थोड़ा, गॉज प्रेशर नहीं समझ आया, थोड़ा बेसिक से पढ़ाना सर, और बेसिक, दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग्स, ये 9th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। और बेसिक क्या 6th में जाएंगे क्या, सर वंस रिपीट प्लीज, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है सर। ओके, तो यहाँ पे गॉज प्रेशर इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एट द पॉइंट एंड एटमोस्फेयर। मतलब यहाँ पे जितना प्रेशर होगा पीए, इसको अगर ये एटमोस्फेरिक प्रेशर से डिफरेंस कर देंगे तो यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम क्रिएट होगा, लिक्विड कॉलम,
लिक्विड कॉलम तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है ना इस इमेज पे, व्हाट इज ए लिक्विड कॉलम, दिस इज ए लिक्विड कॉलम। यहाँ पे बेसिकली ये एयर कॉलम है जो एटमॉस्फेरिक एयर है, दिस इज एन एयर कॉलम। ओके, जैसे ऐसे कॉलम है, मतलब एज्यूम किए हैं, राइट। दिस इज द गॉज प्रेशर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मर्क्यूरी बारोमीटर। मर्क्यूरी, ये थोड़ा इधर हो गया, मर्क्यूरी बारोमीटर क्या होता है, ये सब टर्मिनोलॉजी आप जब भी कोई वेंटिलेशन का बुक पढ़ेंगे उसमें सब ये आता है, जो कि आप लोग समझ में नहीं पाते हैं, और उसके बाद पूरा छोटा सा चीज अगर समझ में नहीं आता है तो पूरा टॉपिक ही आपका डाउट रह जाता है, राइट। इसीलिए मैं ये सब कवर करवा रहा हूँ, क्लियर। तो अभी ये समझ में आ गया कैसे यहाँ पे मेजर हो रहा है, रोजीएच कहाँ से आया है, ठीक है, क्लियर। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम, ये मर्क्यूरी बारोमीटर क्या करता है। सी, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PATM है, अभी इसको ना कोई बहुत सारे साइंटिस्ट इसको मेजर करने की कोशिश किए, ठीक है। तो वो लोग क्या किए, एक डिवाइस बनाए मर्क्यूरी बारोमीटर। इसको कैसे, ये क्या है बेसिकली, एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे उन्होंने बाउल ले लिया। अभी वहां पे वो लोग क्या किए हैं, यहाँ पे एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब टाइप यहाँ पे वो लोग लगा दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है बेसिकली, इस लेवल तक मर्क्यूरी का मेनिस्कस कैसा रहता है, ऊपर रहता है, राइट। ये सब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। यहाँ पे ये लोग क्या ले लिए हैं, मर्क्यूरी, क्यों ये कर रहे हैं, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। ओके, तो सी, कमिंग बैक टू मानोमीटर, मानोमीटर के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। आप लोग सीसॉ देखे हैं, सीसॉ, तो बैठ के झूला झूलते हैं ना इसमें, सीसॉ में, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, यहाँ पे एक बंदा बैठेगा, ठीक है, दिस इज सीसॉ। अभी यहाँ पे इसका अगर 50 किलो है और इसका 40 है, कौन ऊपर जाएगा, ए जाएगा या बी जाएगा, ऑब्वियसली बी ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे फिर और एक बंदा आके बैठ गया, कितना का, 20 किलो का, 20 किलो तो नहीं, 60 किलो का, फिर 40 किलो का, तो अभी ये ऊपर आ जाएगा, राइट। लाइक ए सी सॉ, क्या होता है, आपका जो मानोमीटर है, यहाँ पे अगर ऐसे अगर हम यूट्यूब ले लें, यूट्यूब सिंपल है, कोई बड़ा मीनिंग नहीं है, एक ट्यूब है जिसका शेप है यू टाइप का एक ट्यूब है, ओके, कोई बड़ा टर्मिनोलॉजी नहीं है ये, एक यू ट्यूब ले लिए हम यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, आप घर में भी ये सब कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर दिए, एक कोई भी लिक्विड, पानी हो कुछ भी हो, यहाँ पे लिक्विड भर दिए हैं, ओके। अभी हम क्या करेंगे, क्लियर तो हो रहा है ना आप लोग, यू गाइस आर अटेंटिव, राइट, यस, यूट्यूब, not YouTube, okay, not YOU, it is only YouTube, ओके, मतलब यू शेप का एक ट्यूब होता है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम प्रेशर डालेंगे, यहाँ पे सी, मैं बोला कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, लिक्विड सरफेस हो, आपका स्किन हो, कोई गाड़ी हो, घर हो, पेड़ हो, जो भी हो, वहां पे हमेशा क्या गिरता है, उसके सरफेस पे हमेशा क्या होता है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा बना रहता है वहां पे, राइट, हमेशा बना रहता है। तो कुछ भी प्रेशर नहीं है यहाँ पे, तो कौन सा प्रेशर गिर रहा है, यहाँ पे भी PATM गिर रहा है, यहाँ पे भी पी एटमोस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है, दोनों में। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर दे देंगे, P0, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर दे दिए, तो अभी इस लेवल, ये जो लेवल है, अभी ये तो एक लेवल में था, अभी ये हो जाएगा डिस्टर्ब,
कैसे डिस्टर्ब होगा? अभी ये लेवल जो है यहाँ से, ये लिक्विड क्या है, लिक्विड, इस लिक्विड को हम पुश करते हैं तो वो आगे जाता है। ये कहाँ से पता चलता है? पानी का पंप यूज करते हैं घर में, उसी से। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई पानी का बोतल ले लो, उसको पानी नीचे से प्रेस करो, पानी ऊपर चला जाएगा, अगर आधा है तो पानी। ठीक है, तो अभी यहाँ से ये लिक्विड क्या हो जाएगा, इतना दूर तक नीचे आ जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा। अगर ये इतना नीचे आ जाएगा, हम एक आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। राइट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब जितना पानी आप यहाँ से छोड़ोगे उतना पानी ऊपर भी जाएगा, डिस्प्लेस होगा, तो यहाँ पे उतना पानी ऊपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक लेवल डिफरेंस आ गया। अभी ये मैं ले रहा हूं, दिस इज द आर्म ए। राइट, थोड़ा बड़ा करके बताएं इसको। सी, अभी यहाँ पे ये लेवल डिफरेंस कैसे है पता चल गया आपको? ठीक है, यहाँ पे ये अभी लेवल डिफरेंस आ जाएगा कितने का, इतने का लेवल डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा एच। ओके, तो अभी ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर दिए हैं, इसको एक्चुअली डेल्टा पी ले लो, जो एक्स्ट्रा प्रेशर दिए हैं, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? इट इज योर, ये लिक्विड का अगर डेंसिटी रो है तो इसका कितना होगा, रो जी डेल्टा एच। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज द प्रिंसिपल हाउ वी मेजर द प्रेशर। कहीं पे भी अगर प्रेशर मेजरमेंट हो रहा है, दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स बिहाइंड इट। तो साइंटिस्ट जो भी थे या फिर रिसर्चर्स, एकेडमिशियन जो भी हैं, वो लोग कैसे किए पहले, कि वो लोग क्या किए, मरकरी ले लिए। मरकरी का एक डेंसिटी होगा कुछ भी, रो एच जी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अभी क्या किए, यहाँ पे कुछ नहीं किए, बस वो एक इन्वर्टेड ट्यूब वहां पे रख दिए, तो ऊपर आपका क्या आ गया, वैक्यूम आ गया। और जब यहाँ पे, सिंस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है यहाँ पे, सिंस योर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्टिंग, अभी यहाँ पे वो लोग वैक्यूम रखे हैं। वैक्यूम रखे हैं मतलब यहाँ पे कुछ प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर जीरो है। राइट, वैक्यूम का मतलब क्या होता है, वहां पे एयर ही नहीं है, आप सभी को पता है, जैसे कि स्पेस में होता है वैक्यूम, वहां पे प्रेशर, एयर प्रेशर कितना होगा, दैट इज योर जीरो। राइट, तो अभी यहाँ पे दो आर्म हो गए। सी, दिस इज ए काइंड ऑफ यूट्यूब, सॉरी यूट्यूब, जो यहाँ पे यूट्यूब हम देखे हैं उस टाइप का। अभी यहाँ पे एक लेवल डिफरेंस है, दिस इज योर डेल्टा एच, दिस इज योर लेवल डिफरेंस। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, कि हमने प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे माना, कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हम कन्वर्सन करते हैं कोई भी न्यूमेरिकल करने के टाइम में, दैट इज योर 1 mmHg। यहाँ से mmHg से एटमॉस्फेरिक को कन्वर्ट करते हैं, फिर एटमॉस्फेयर से पास्कल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, दैट इज वी आर बेसिकली डिस्कसिंग नाउ। तो अभी यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर रहा है, तो ये क्या होगा, एट अ सिमिलर लेवल प्रेशर हमेशा, मतलब उतना मैं नहीं जाता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो लिक्विड कॉलम डेल्टा एच है, वो कितना उनको शो किया कि 760 mm वो ऊपर चला गया मरकरी। जब यहाँ पे ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है, और इस आर्म में मतलब यहाँ पे प्रेशर जीरो है वैक्यूम में, तो उनका जो लिक्विड कॉलम कितना राइज हो गया मरकरी का, 760 mm। ओके, तो अभी वो लोग क्या वहां पे एक स्टेटमेंट दिए कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना mmHg के बराबर है, 760 लिक्विड कॉलम ऑफ मरकरी के बराबर है। ठीक है, ये एक यूनिट बन गया। उसके बाद अभी यहाँ पे आप अगर वाटर कॉलम यहाँ पे देते तो इसको क्या लिखते, वाटर गॉज। ठीक है, ये सब वर्ड आप लोग पहले सुने होंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक्स कि कैसे आपका एयर, एटमॉस्फेयर सब आया। राइट, अभी यहाँ पे mmHg से बार पास्कल में कन्वर्जन यहाँ पे दिया गया है, वो हम देख लेंगे। अभी इसका बेसिक्स आपको पता चल गया, वो न्यूमेरिकल करने के टाइम अपन वो डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए कि कैसे हो रहा है। एंड दिस U tube is basically
This U2 is basically termed as a manometer, the U tube which is used to measure the pressure difference is basically termed as manometer. ठीक है, वहां पे कौन सा वाटर लिक्विड मानोमीटर, उसमें वाटर हम लेते हैं, राइट। कहीं कहीं आपका दूसरा लिक्विड लाइक अल्कोहल वगैरह भी ले सकते हैं, राइट, वो ज्यादा सेंसिटिव रहता है। ठीक है, तो अभी लेट सपोज दिस इज अ माइन एयरवे। अभी यहाँ पे अभी यहाँ पे जो एयर फ्लो है वो एयर इधर आएगा और यहाँ पे कुछ प्रेशर देगा, जो भी प्रेशर है, अभी उसका हम स्टैटिक प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर उसमें नहीं जा रहे हैं, ठीक है, कोई प्रेशर यहाँ पे दे रहा है। और अगर इसको हम इस ट्यूब से बाहर में रखे हैं तो व्हाट इज दिस इज द उस ये एनवायरमेंट का, ये माइन एयरवे ना बोल के इसमें आप बोल दो कि ये आपका जो वेंटिलेटिंग डक्ट है ये वाला, लेट सपोज, ठीक है, यहाँ पे वेंटिलेटिंग डक्ट है, यहाँ पे कुछ एयर का प्रेशर है P, ठीक है, P1 ले रहा हूं मैं, P1, तो ये एयर आके यहाँ पे प्रेशर डालेगा, ठीक है, कुछ भी, ओके। तो अभी यहाँ पे एक लेवल डिफरेंस है H, यहाँ पे डेल्टा H लिखना चाहिए बट H, ओके, इट विल बी ओके, ठीक है, H है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये P1 का वैल्यू कैसे पता चलेगा, अगर हमको ये उसका जो आउटसाइड एनवायरमेंट का प्रेशर हमको पता है, तो ये P1 कैसे पता चलेगा, P1 इज बेसिकली बट P0 प्लस रो जी एच, अगर यहाँ पे कोई रो डेंसिटी का लिक्विड यूज किया, रो जी एच, हमेशा याद रखना इन अ लेवल मतलब ये जो लाइन दिख रहा है, अगर ऐसा कोई लेवल है, हमेशा अलोंग दैट लेवल लिक्विड प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ओके, इसका मतलब क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर एक इस टाइप का एक शेप है जहां से आपका लिक्विड फ्लो कर रहा है, लेट सपोज, ओके, ऐसे कहीं पे एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, या फिर सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, एक पैराडॉक्स होता है फ्लूइड मैकेनिक्स में, एक पैराडॉक्स टाइप होता है, सिंपल है, आप ये सोचिए, राइट, ये एक यूट्यूब मानोमीटर है, यूट्यूब है, ठीक है, एंड दिस इज द लिक्विड कॉलम, ओके, ठीक है। तो अभी हम ये आर्म ए बोल रहे हैं इसको, आर्म ए, दिस इज योर आर्म बी, ओके, लेट्स सपोज दिस आर्म ए आर्म बी। अभी आर्म ए आर्म बी के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में अगर हम वहां पे अपन क्या करें, वहां पे अगर आपका प्रेशर चेक करें तो कितना रहेगा, राइट, ये यहाँ पे मैच कर रहा है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स अलोंग दिस लाइन, वेदर इट इज प्रेजेंट इन आर्म ए और आर्म बी, मतलब ये आर्म ए में भी हो सकता है ये पॉइंट, आर्म बी में भी, एट अ गिवन लेवल, ये लेवल है, लेवल 1 है, लेवल 1 में हमेशा लिक्विड प्रेशर लेट सपोज P1 रहेगा, तो इट इज ऑलवेज P1 बोथ इन आर्म ए एंड ऑल्सो इन आर्म बी। अगर यहाँ पे प्रेशर P1 है तो यहाँ पे भी जो लिक्विड होगा उसका भी यहाँ पे प्रेशर P1 ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं एक और लेवल, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सब थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो इस जगह पे भी अगर प्रेशर P2 है तो इस कॉलम में भी प्रेशर क्या होगा, P2 होगा, राइट। सिमिलरली अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे प्रेशर P0 है, यहाँ पे प्रेशर, तो अभी इस
लेवल में अगर हम देखें, यहाँ पे प्रेशर P1 है, तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या होगा, P1 होगा। तो P1 और P0 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो P1 इज इक्वल टू P0 प्लस ये लिक्विड कॉलम का वेट, वेट फोर्स पर यूनिट एरिया जो ρgh है। तो अभी P1 इज इक्वल टू P0 प्लस ρgh। ये बस इसीलिए मैं दिखाया हूँ कि जो ये लेवल है, एट अ गिवन लेवल द प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये दिखाने के लिए बस ये फिगर लाया था। दिस इज ए मैनोमीटर। मैनोमीटर कुछ इस टाइप का रहता है। ये भी एक मैनोमीटर अरेंजमेंट है। यहाँ पे आप कैसे प्रेशर मेजर कर रहे हैं यूजिंग अ मैनोमीटर, अभी आपको क्लियर है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, क्लियर है? जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा बता दीजिए। बहुत टाइम बिठा लिया हूँ आपको, लंबा खींच दिया बहुत। आई थिंक थोड़ा ज़्यादा ही फंडामेंटल्स हो गया। क्लियर है? एनीवन, कुड यू प्लीज रेस्पॉन्ड? सी, आप लोग जैसे रेस्पॉन्ड करेंगे, आज इसीलिए इंट्रोडक्टरी क्लास है। इफ यू I want some more response because 75 participants are there. फास्ट हो रहा है सर थोड़ा, पर क्लियर है। ओके ग्रेट। हाँ, फास्ट को थोड़ा स्लो करेंगे तो एक्सप्लेन कर दीजिए। पर प्रेशर डेंसिटी पे डिपेंड होता है ना P1, और P1 सेम कैसे होगा? मैं आपको वहां पे बताया कि सी दीज आर द लॉस। ओके, ये आप ऐसे सोचो कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे डेंसिटी पे डिपेंड है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ दिस इज ए सेम लिक्विड, राइट। इन्हें यूट्यूब मानोमीटर का बात अभी कर रहा हूँ, बाकी सब छोड़ो। यूट्यूब मानोमीटर में आर्म ए और आर्म बी का, जैसे आप ये देखें ना, कोई अगर गाड़ी का सर्विसिंग करवाने ले जाता है तो वहां पे क्या रहता है, जो हाइड्रोलिक जैक वगैरह रहता है, राइट। यहाँ पे अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये लिफ्ट हो जाता है, राइट। राइट, ये क्यों होता है? सम रिलेटेड टू दिस प्रिंसिपल, मैं ये डिटेल में बता सकता हूँ। यहाँ पे इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। इस यहाँ पे अगर लिक्विड प्रेशर अपन सी इनसाइड ए लिक्विड ऑलवेज प्रेशर एक्टिंग इज इक्वल, मतलब यहाँ पे अगर आप फोर्स F1 डाल रहे हो, यहाँ पे फोर्स F2 ये लेगा, तो अभी क्या होगा, F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई A2, राइट। ये हाइड्रोलिक जैक का ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, 11th 12th में आप लोग देखे होंगे, राइट। तो दिस इज फंडामेंटल्स। ओके, मैं ये एक्सप्लेन आपको कर नहीं पाऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। फिर इन द सेम लेवल्स अपना क्या होता है, प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ऑलवेज सेम रहता है। इसीलिए हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि क्योंकि बाकी सब तो बराबर हो जा रहा है वेट अपने आप से। इसीलिए अगर ये पॉइंट में P2 है, अब ये पॉइंट में भी P2 लेंगे, ये डेल्टा H हो गया। तो अभी यहाँ पे अगर P0 है, तो अभी P2 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, P1 प्लस ρg डेल्टा H। ओके, लाइक दिस, दिस इज द मेन थिंग। स्टडी मटेरियल मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा बाद में, ठीक है। थोड़ा स्लो है, फास्ट हो रहा है, पढ़ना आना है तो क्लियर होगा हमको। हमको क्या पढ़ के आना है तो सी, ये तो आप कुछ भी पढ़ के आना नहीं पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो डिस्कस किया है ना, ये पूरा बेसिक से ही हम लोग डिस्कस किए हैं। सी, मैं ये क्लास 7th 8th का चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट, पूरा बेसिक से। तो एज पर मैं जो सोचता हूँ कि आपको कुछ पढ़ के आना नहीं पड़े और पूरा बेसिक से यहाँ पे ही क्लियर हो। तो यू डोंट नीड टू, यू जस्ट नीड टू, आप जब अभी क्या करते हैं ना, बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं पूरा भास्ट में नहीं, मतलब क्या करें, कॉन्साइज होके पूरा बहुत डिटेलिंग में पढ़ रहे हैं, ऐसे गॉज प्रेशर कहीं पे लिख देता है बुक में, राइट। तो वो सब चीज है क्या, बेसिकली उसको समझने के लिए ये मैं 2 3 क्लासेस यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड में रखा हूँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अभी यहाँ तक हो गया। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग में आप आराम से स्लो करके अपने स्पीड से ही देख सकते हो, ठीक।
ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, अभी ये गेट क्वेश्चन आ गया। गेट में क्वेश्चन वगैरह इसके ऊपर बहुत बार पूछा गया, स्टैटिक वेलोसिटी एंड टोटल प्रेशर। अभी इसको कैसे मेजर करते हैं, सी हाउ दिस मैनोमीटर इज अरेंज्ड। ये मैं आपको फ्लूइड फ्लो में भी बताऊंगा, ये इसीलिए रखा हूँ फॉर मोटिवेशन, आपको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि सर जो बता रहे हैं वो एक्चुअली आपका सिलेबस का ही चीजें हैं, बट थोड़ा सा बेसिक से है, राइट। दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस हियर। Pressure can be expressed as three different forms: static pressure, velocity pressure, total pressure. And YouTube manometer is used to record the three types of pressure. Water gauges are mainly used to measure ventilation pressure in mines. Okay, mines का बात हो गया, इसका यूनिट mmWg, mm वाटर गॉज। ठीक है, अभी ये तो आप लोग पहले सुने होंगे mm वाटर गॉज, mmWg, बट अभी आपको क्या हुआ ना, उसका फंडामेंटल पता चल गया कि है क्या ये बेसिकली। ठीक है, तो तीन टाइप का प्रेशर हम मेजर करते हैं मैनोमीटर के चलते, ये अपन आगे देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। एयर फ्लो इन माइंस, मैं आपको बताया ना दिस स्लाइड, एयर फ्लो थ्रू माइंस, उसमें हम क्या करेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। क्लियर है? ओके, हाँ, और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं कहाँ कहाँ से कवर कर रहा हूँ ये सब चीजें। टू बुक्स, टू बुक्स आई एम कवरिंग। सब सरफेस वेंटिलेशन, मैं अभी आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, मैं भूल गया स्टार्टिंग में। वेंटिलेशन इंजीनियरिंग, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह सब यहीं से, और एक है जीबी मिश्रा। दिस टू बुक्स आई एम कवरिंग, ओके, माइंड वेंटिलेशन बाय जीबी मिश्रा। ये बुक के बारे में तो आप लोग सुने होंगे, सब सरफेस वेंटिलेशन इंजीनियरिंग का एक बुक है, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, अलग लेवल का बुक है वो। ठीक है, मतलब इट इज ए टोटल वेंटिलेशन, नॉट हियर, डाउनलोड्स, ओके, सी फ्रॉम दिस बुक बेसिकली आई एम कवरिंग। ये आपको गूगल में आप लिख लोगे सिंपल मैकफेयरसन, आप लोग कोई कोई सुने होंगे मैकफेयरसन। सी ऑल दिस थिंग्स, बेसिक इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब हम कवर करेंगे यहीं से। आप लोग कोई चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि वन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज रो जी एच। ओके, तो इतना है आपका रो, डेंसिटी ऑफ एयर, इतना जी और इतना एच, ये सब राइट कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पे दिया गया है। तो यू कैन, बैरोमीटर क्या है वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो आप अभी फंडामेंटल चैप्टर जो है उसके लिए यू कैन कवर दिस बुक। अभी मैं गूगल में बस ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे सरफेस वेंटिलेशन इंजीनियरिंग पीडीएफ, तो पहला जो लिंक है उसी में ही आपका आ जाएगा, कोई भी लिंक क्लिक करोगे तो आ जाएगा। क्लियर है? ओके, पीडीएफ ग्रुप में भेज दीजिए। अरे बड़ा फाइल है, आपको मैं बता दिया हूँ, बी सेल्फ सफिशिएंट। ओके, ऐसा मैं भेज दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद गूगल से ढूंढ सकते हैं। बस गूगल में लिख लीजिए सब सरफेस वेंटिलेशन इंजीनियरिंग बाय मैकफियरसन, या फिर ओनली सब सरफेस वेंटिलेशन इंजीनियरिंग पीडीएफ, बुक आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं लिंक भेज दूंगा, ढूंढ के भेज दूंगा, विल डू समथिंग। ओके, तो फ्रॉम दोज टू बुक्स यू कैन, आप लोग वहां से रीड करके आ सकते हैं, नो इशू, राइट। एंड विल, हाँ, वहां से रीड करके आ जाइए, बेटर है। ठीक है, तो मैनोमीटर का ऐसा यूज हो रहा है। तो हियर इट इज स्टैटिक प्रेशर, टोटल प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर, ये कैसे मेजर करता है विल सी इन फ्यू स्लाइड्स। सी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ही ये फिगर वगैरह यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज मोस्टली हम क्या करेंगे, पेन पेपर स्टाइल में पढ़ेंगे। जो आपका ओल्ड मेथड होता है उसमें ना क्या होता है, मेरा फेवरेट है वो, ऐसा नहीं है बस एनिमेशन दिखा दो, ये कभी कभी कंसेप्ट समझने के लिए काम आता है, बट नॉनदलेस अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से सीखना चाहते हैं, लाइक अगर आप यहाँ से पढ़ के किसी और को पढ़ाने की सोच रहे हैं, राइट, बिकॉज आपका पढ़ाई उसी समय कंप्लीट होता है जब आप
खुद पढ़ के दूसरों को समझा सको, दूसरों को भी लिटरेट कर सको, राइट। तो इसीलिए इस तरह से यहाँ से सीखिए, राइट। ये कॉन्सेप्ट्स को भूलना मत। और ये सब बस जनरल नॉलेज के लिए दिया गया है, राइट। एनारोड बारोमीटर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे एक जिसे बोलते हैं वैक्यूम चेंबर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डायफ्राम इन द केस ऑफ दिस। इसको हम बोलते हैं डायफ्राम गज। ये आप लोग देखे होंगे, इससे बेसिकली अभी प्रेशर का रीडिंग होता है, कैसे रहता है उसका भी और इसका भी प्रिंसिपल सेम है। ये डायफ्राम है आपका, यहाँ पे एक वैक्यूम चेंबर है, यहाँ पे एक डायफ्राम होगा, सी दिस इज अ डायफ्राम चेंबर, वही वैक्यूम चेंबर टाइप का। तो यहाँ पे जो भी डिस्टर्शन होगा, जब भी कोई एयर फ्लो अगर यहाँ से हम करवाएंगे, तो यहाँ पे ये बहुत सेंसिटिव होता है, उसका सेंसिटिविटी को फर्दर एनहांस करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लीवर अरेंजमेंट होता है, राइट। तो जब यहाँ पे इसमें कुछ डिस्टर्शन होगा, डिस्टर्शन या फिर डिस्टरबेंस जो भी बोल सकते हो, डिस्टरबेंस कुछ यहाँ पे अगर कुछ हलचल होगा, तो वो हलचल क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा टू दिस, थ्रू दिस आर्म टू दिस लीवर टू दिस स्पिंडल, और वहां से वो क्या करेगा, ये कनेक्टेड है अपना पॉइंटर से, तो पॉइंटर में अपना रीडिंग दे देगा। इसका एक्यूरेसी इतना फाइन है, सोचो, राइट। दिस इज एनारोड बारोमीटर। सिमिलरली आपका क्या होता है, डायफ्राम गॉज यूज होता है। नाउ इट इज मोस्ट ऑफ, in most of the cases we are using this diaphragm gauge, okay। तो diaphragm gauge का कुछ एडवांटेज है। what are the advantage of diaphragm gauge? true प्रेशर फोर्स एरिया रिलेशन ये फॉलो करता है, राइट। कैसे करता है उतना डिटेल में हम मैकेनिकल एस्पेक्ट्स में नहीं जाएंगे अभी इसका, ठीक है, बस थोड़ा सा आपको पता हो जाए। ओके, एंड क्या करता है, क्विकली क्विकली रेस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि विथ टेम्परेचर हम आगे देखेंगे, विथ टेम्परेचर क्या होता है, प्रेशर का वेरिएशन रहता है। जैसे आपका पीबी इज इक्वल टू एनआरटी गैस इक्वेशन है, उससे अगर हम देखें तो विथ प्रेशर टेम्परेचर रिलेटेड रहता है, ओके। तो क्विकली रेस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड डू नॉट रिक्वायर प्रिसाइज लेवलिंग। लेवलिंग किस में चाहिए, मैनोमीटर में आपका लेवल चाहिए, क्योंकि हम लेवल से ही इसका सब खेल है, इसका खेल लेवल डिफरेंस से ही है। मैनोमीटर का खेल किस में है, लेवल डिफरेंस में है। इसका जो प्रिंसिपल सब लाई करता है बिटवीन द लेवल डिफरेंस कितना है उसका, ओके। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, लेवल डिफरेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, डोंट रिक्वायर प्रिसाइज लेवलिंग। तो प्रिसाइज लेवलिंग का यहाँ पे जरूरत नहीं है, और ऑब्वियसली इट इज इजी टू हैंडल डिवाइस। ये आप लेके जाओगे माइंस में तो कैसा हालत होगा, सिंपल सा ये लेके जाओ कहीं भी फिट कर दो, ठीक है। तो मोर रोबस्ट इन डिजाइन, ये सब आप खुद लिख सकते हो। wide variety ranges can be made, can be manufactured, राइट। ये सब उसका क्या है बेसिकली, ये सब उसका एडवांटेजेस है, राइट। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे एक डायफ्राम होता है, इसका एक, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, सेम है लाइक दिस। ये ग्राफिक्स में आपको अच्छे से पता चल रहा है, लाइक दिस। यहाँ पे क्या होगा, एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होगा जो कि पॉइंटर को आपका कनेक्ट होगा। यहाँ पे एक फिक्स पाइवट है, पाइवट आप लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स में कैसे होता है पाइवट जॉइंट, राइट। ऐसा देखे हैं कोई, पिन जॉइंट जो होता है ये यहाँ पे रोटेट कर सकता है, राइट। वैसे यहाँ पे पाइवट है, ठीक है, ये लिंक है, इसको स्टेम भी बोलते हैं। यहाँ पे एक बॉल जॉइंट है, यहाँ पे टॉप फ्लांज बॉटम फ्लांज, ये आपका यहाँ पे एक
और दिस इज योर डायफ्राम बेसिकली। तो जब यहाँ डायफ्राम में हलचल होगा, स्केल चेंज करेगा, ठीक है। तो डायफ्राम से वो डिस्टरबेंस, प्रेशर अगर किसी बलून है उसमें अगर प्रेशर डाल रहे हैं वो ऐसे फूल जाएगा, तो उसमें क्या होगा, वो डिस्टरबेंस कैरी होगा थ्रू दिस स्टेम टू दिस पॉइंटर थ्रू दिस मैकेनिकल अरेंजमेंट। यहाँ पे जो भी मैकेनिकल अरेंजमेंट है वही यहाँ पे लिखा गया है, राइट। और वो यहाँ पे रीडिंग शो करेगा, तो हम उसको क्या करेंगे वहाँ पे, दैट इज क्या बोलते हैं उसको, एक टर्म बोलते हैं एक्टुएट, एक्टुएट या फिर उसको कुछ बोलते हैं, राइट। तो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम गॉज। ओके, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। दिस इज योर फंडामेंटल क्लास। बस आज तो मेरे को थोड़ा इंट्रोडक्शन ही देना था, बट वी हैव डिस्कस्ड many things today, and please keep remember these concepts. Tomorrow we will start we'll start we'll start from this equation of continuity. Okay, it's a basic है, and you guys can have a read of this book, subsurface ventilation engineering, this first chapter, introduction to fluid mechanics. ओके, यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, यहाँ पे बारोमीटर के बारे में भी लिखा गया है। ओके, तो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट क्या है, ये मैं माइनिंग का ही बुक लिया हूँ, ठीक है, सरफेस वेंटिलेशन इंजीनियरिंग से। ये बुक माइनिंग में ही कवर होता है, ठीक है, इसका से सरफेस वेंटिलेशन इंजीनियरिंग, एंड लास्ट में इसका सब दिया गया है, माइंस के रिलेटेड ही सब होगा, राइट। ये बुक आप देख सकते हो। दिस इज ए वेरी, यहाँ से लिमिटेड ही हम कवर करेंगे, सब कवर नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ है ये वाला, बहुत बड़ा बुक है। सी यहाँ पे हैंगिंग वॉल, ओवरबॉडी फुटवॉल, दिस इज अ माइनिंग बुक, ओके। So you guys can follow this, but it is an international mining book, that's the difference. Okay, clear है यहाँ तक? I am closing this session right now and we will meet tomorrow, so please you guys can respond, is it clear? Clear है जो भी बताया गया है अभी तक? Any doubts? Okay, great. तो आगे पढ़ेंगे, हम देखेंगे, एंड मज़ा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कितने को लगता है कि आज थोड़ा मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला? Just answer this. हेलो। जय श्री राम। कल कहाँ से पढ़ेंगे? कल का कल देखेंगे। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। नो अटेम्प्ट? ओके, ठीक है फिर।
यही क्लास एंड करते हैं. टुमारो बेसिकली विल हम थोड़ा लंबा खींचेंगे. ओके, बहुत बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए क्लास यहीं एंड करते हैं. विल मीट टुमारो. ओके, थैंक यू वेरी मच. आप सबने सुना अच्छे से. एंड आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ.